So how we can find out? One was received, तो ये मेरा received हो गया. Suppose I have to find out the one was received, but there are the two possibilities. One was transmitted at that time, one was received. If zero was transmitted at the time, one was received. So what is transmitted? You have to return over. Suppose one is transmitted at that time, I received the one plus zero was at that time zero was transmitted and one received. Okay, so there are the two possibilities. Now here it is nothing but the, we can say, the total probability theorem, जो बेस theorem में हम लोग डिनोमीटर में लिखते हैं वही सेम है. तो when the one was transmitted at that time, we have to also find out the probability of one was transmitted. इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी पे तो उसका फाइंड करना पड़ेगा ना, दैट इज p of t1. तो वन को ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और मल्टीप्लाई विद द, कि जब वन ट्रांसमिट हुआ था तब वन रिसीव्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितना मिलता है. So you have to write multiplication of p of t1 into p of r1 by t1. Similar, plus when one was received at that time zero was transmitted, तो जीरो को ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी. मल्टीप्लाई विद द जीरो वाज ट्रांसमिटेड एट द टाइम वन वाज रिसीव्ड, तो r1 by t0. अभी ये सारी वैल्यूज, which one is this data? This all the data are given in the question. p of t1 is given, p of t0 is given, r1 by t1 given and r1 by t0 given. Directly r1 by t0 is not given, right? तो जो भी आपको जीरो ट्रांसमिट होता है और जीरो रिसीव होता है उसका डेटा क्या था आपको? r0 by t0 it is 0.95. r0 by t0 data it is given, that is p of r0 by t0, it is 0.95. तो अगर if error occurred in the communication channel, तो zero was transmitted and you receive the one, तो वो कितना हो जाए? 1 minus 0.95. एक्चुअली मेरा आज टैबलेट अलग है, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है. हाँ, 0.95, सो इट बिकम 0.05. तो ये आपको मिल गया ये डेटा. इट इज डायरेक्टली नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, बट वी कैन फाइंड आउट बिकॉज जीरो 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 ट्रांसमिट होता है, जीरो रिसीव होता है, उसका प्रोबेबिलिटी दिया है, तो वी हैव टू डू द 1 minus that, so we will get the 0.05 for that. So all the data are given, just you have to substitute the values in the equation, you will get the p of r1, that is the one was received. Is it clear? Hello, ma'am. Can you repeat Yes. from that part, that equation from that we derived? Okay, It fine. wasn't clear. Yeah. We have studied the total theorem, total probability theorem, correct? So this is also total probability theorem. So what we have to do? We have to find out the one was received. So there are the two possibilities. When the one was transmitted, when zero was transmitted. Okay, दोनों में possible है कि आपको one received होगा. So what we have to write down? P of r1 by t1 and p of r1 by t0. There are the two possibilities. But when you find out p of r1 by t1, at that time you have to also do the multiplication p of t1. Why? Because we have to find out कि one transmit होने की probability कितनी है. तो ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थियरम है. और ऐसा सिंपल नॉर्मल एग्जांपल भी हमने पहले किया हुआ है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. क्यों? क्योंकि पहले तो हमको वन ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो फाइंड करना पड़ेगा. वो करने के बाद वी हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन विद कि वन ट्रांसमिट हुआ, उस टाइम पे r1 क्या मिला, वन रिसीव क्या हुआ, तो वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सिमिलर फॉर द जीरो ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी, तो p ऑफ t0 विच वन इज मल्टीप्लाई विद t0 ट्रांसमिट, मतलब जीरो ट्रांसमिट हुआ एट दैट टाइम, वन रिसीव हुआ, so that is the conditional probability of that. So we have to do this two, do the addition of these two, then Hello, we will ma'am. get the. Yes. Some people are waiting outside. अरे मैं एक्चुअली भाई स्क्रीन चेंज होता है तो आई एम नॉट एबल टू एडमिट देम. नो वन इज हियर. बोलो उनको जल्दी से एडमिट करें, मतलब जल्दी से ज्वाइन करें, मैं एडमिट करती हूँ अभी. एक्चुअली मेरे दूसरा डिवाइस मोबाइल में चालू है, उसमें पॉपअप आता है, मैं एडमिट कर लेती हूँ.
मोस्टली प्रॉब्लम नहीं Ma'am. होना चाहिए. Hello, ma'am. Yes, yes. Good morning, ma'am. Can you explain again a base theorem? यस यस यस, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एडमिट का बोला इसीलिए मैं ये स्क्रीन पे आई. सो मुझे वन रिसीव्ड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था. तो पहले तो मैंने दो पॉसिबिलिटीज सोचा कि वन रिसीव कब कब हो सकता है. एक तो जीरो ट्रांसमिट होगा तब होगा, या तो एक तो वन ट्रांसमिट होगा तब होगा. ओके, तो ये दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिया, दिस टू. नाउ ये दोनों को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया इन फॉर्म ऑफ द आर एंड टी. तो वन ट्रांसमिट हुआ एट दैट टाइम, वन रिसीव हुआ, या तो जीरो ट्रांसमिट हुआ एट दैट टाइम, वन रिसीव हुआ. ओके, बट यू हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन विद दिस टू प्रॉब्लम. इंडिविजुअल भी तो हमको फाइंड कंसिडर करना पड़ेगा ना कि वन को ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और यहाँ पे सेम जीरो को ट्रांसमिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. So that's why I have written this is nothing but the total probability theorem. आप चेक करेंगे तो total probability theorem सेम वही है. तो P of R1 by T1 into P of T1 plus P of R1 by T0 into P of T0. तो ये चार values you have to substitute here. तो P of T1 is given, P of T0 is given, P of R1 by T1 is given, but P of R1 by T0 is not given. What exactly given? P of R0 by T0. So for that we can find out 1 minus this data, so we will get the value of R1 by T0. Okay, so ये values मिल गया, तो substitute the all four values here, you will get the answer of P of R1. Now it is clear. Any doubt in the P of R1, how we can find out? So what is the answer of P of R1, students? The final answer. No, P of R1 final answer. You have to substitute these four values, and what will you get? 0.56. Yeah, it is the 0.56, correct. This is the answer of P of R1. Okay. So first question का answer मिला, one was received का. Change करूँ? Yes, ma'am. Okay. So now we have to find out the second question. Second Ma'am, question is का- Yeah. no, ma'am. Sorry to interrupt, but the answer for second question is 0.54. It's 27 by 28. मैंने section में नहीं लिखा है. Check 27 by 28. No, ma'am. Okay. Okay. So what is the second question? Yeah, this one. One was transmitted given that one was received. तो पहले तो मुझे बताओ R by T या T by R क्या फाइंड करना है आपको? T1 upon R1. Yeah, exactly. T1 upon R1 you have to find out. So, T1 upon R1 given that one was received, that is the condition is given. Okay, and you have to find out the probability of one was transmitted. So we have to find out the P of T1 by R1. So here write down the P of T1 by R1. Now here apply the Bayes theorem. So how we can find out the Bayes theorem? How we can apply the Bayes theorem over here? P of जो भी आपको फाइंड करना है ना, याद रखो Bayes theorem बहुत सिंपल है. T1 by R1 फाइंड करना है ना, तो आपको यहाँ पे उल्टा लिखना है, R1 by T1. Okay, so P of R1 by T1 into P of T1. Okay, divide by अभी जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है ट्रांसमिशन की, वन हो सकता है समथिंग, तो जो भी पॉसिबिलिटीज है वो हम लोग नीचे सबका एडिशन करके लिखते हैं. दैट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. सो आई कैन राइट डाउन हियर दिस इज P of R1 by T1 into P of T1 plus P of
R1 by T0 into P of T0. So there are the two possibilities to transmit the 0 or to transmit 1. Okay, so we have to write down the here, or this denominator part we can say it is nothing but all part जो है that is P of R1 जो अभी हमने find किया. It is P of R1, which one is already found in the question number 1. So find out this answer. Zero point 9643. Just check it's 27 by 28 because I have written Yes, this ma'am. one. Yeah. Yeah. So I think this all data are given. P of R1 हमने फाइंड कर लिया. जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू. डायरेक्टली भी आप रख सकते हो. ओके या तो इंडिविजुअल जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे ये लिखा है दिस पोर्शन उसमें इंडिविजुअल वैल्यूज रखेंगे तो भी आंसर मिलेगा, सेम आंसर आएगा. और ये वैल्यूज आपके पास है, ये वैल्यू भी आपके पास है. So when you are taking this all values, you will get the answer is 27 by 28. Students, did you understood how we can solve this binary communication example? It is very important. Many times they ask in the final exam. सिंपल है, एक बार समझ में आया तो मोस्टली उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है. 1 was received या 0 was received, just accordingly that you have to change the formulas. Okay, so using the base theorem and total probability theorem we can find out this question. अभी सेकंड में सिमिलर क्वेश्चन दे रही हूँ, जस्ट डेटा चेंज किया है तो आप खुद करो, आपको समझ में आएगा कि हाउ यू कैन सॉल्व दिस एग्जांपल. ओके या दिस वन फर्स्ट कंप्लीट हो गया सबका. Yes, ma'am. Yeah, so write down this example. For a certain binary communication channel, the probability that a transmitted 0 is received as a 0 is 0.8. That means here what is the data is given? P of R0 by T0. Okay. Second, probability that transmitted 1 is received as a 1. It is 0.95. So R1 by T1. Now, if probability that 0 is transmitted is 0.45. So P of T0, it is 0.45. So P of T0 is given, P of T1 is not given. So 1 minus that, we can find out the P of T1. Okay. Now find the probability that 1 is received. Second, 1 was transmitted given that 1 was received. And third one, probability that an error has occurred. 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर लो. 2016. So first write down this all the data which one is given in the question. Okay, so it will be easy for you to solve this example. So write down the first P of R0 by T0 is given, R1 by T1 is given, P of T0 is given, P of T1 is not given, but 1 minus P of T0, we can find out the P of T1. Similar, we can also, here R0 by T0 and R1 by T1 is given, but due to the error, we can also write down the data from that R1 by T0 and R0 by T1. ये दोनों डेटा 1 माइनस करके हम लोग लिख सकते हैं. Have you written this question? Can I change? No, ma'am. Wait. Ma'am, just a second. Oh, okay, fine, no worries.
Done? Yes, ma'am. Division A, roll number 1. Are you there? Yes, ma'am. What is the first data? Which one is given in question? Tell me. P of R0 by T0. Okay. क्या दिया है वो? Value क्या है? 0.8. 0.8. 0.8. Okay, fine. Now next, roll number 7, division A. Roll number 7, division A, Prashant. Roll number 8, Sahil. Yes, ma'am. Yeah, what is the second data is given in the question? P of T1 by R1 is equals to 0.95. T1 by R1? No, ma'am. P of R1 by T1. नहीं, मैंने सिर्फ बोला इसीलिए आपने उल्टा किया कि आप समझ के बोल रहे हो. नहीं मैम, अभी रीड करके बोला. हाँ, प्रॉपर रीड करो. R1 by T1 लिखना है, T1 by R1 वो आपको अभी समझ में आना चाहिए. यस मैम. या क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है? वन इज रिसीव्ड when the one is transmitted. Okay, जो भी है डेटा आपका, so it is considered as a R1 by T1, not T1 by R1. So what is the data is given? 0.9. 5. Okay, only 0.595 na? Yes ma'am. Okay, fine. Now the next data, what is the next data number? Roll number 7, no, 16. What is the next data is given? 16, are you there? Roll number 21. Division. Ma'am, am I audible? Yes. Yeah, 16, tell me, what is the next data is given? PT0 equals to 0.45. Okay, it is 0.45. And next one, P of T1, what is given? P of T1 is given? No, ma'am. No, then how we can find out, how we can write down this data? One minus 0.45. Yes, the total probability is 1. So there are the two chances, या तो 0 ट्रांसमिट हो रहा है, 1 ट्रांसमिट हो रहा है, तो दोनों का एडिशन तो 1 ही होगा. So one data is given 0.45. So definitely we can write down the data for the T1. So it is 0.1 minus 0.45. So it becomes 0.55. Correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Now next, any other data is given in the question? I think no. No. Yeah. Roll number 24. Are you there? Yes, ma'am. Yeah. Here R0 by T0 is given, but I want to write down the data R0 by R1. Here this is the R1, not the 0. 1 by T0. So कैसे फाइंड करेंगे ये R1 by T0? मैम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या प्रोबेबिलिटीज को? नहीं. डेटा जो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है उसको देखो पहले एक बार, डायरेक्टली आपका आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे इसका. 0.45. 0.5 नहीं. 0.2.
Yeah. First data it is written R0 by T0. What is the meaning of that? 0 transmit हुआ और that time मुझे 0 received हुआ, उसकी probability दिया है. अभी मुझे क्या चाहिए? 0 was transmitted but I received 1 due to the some error. Okay, तो मैंने पहले ही बोला था total probability should be 1. तो अगर मुझे करेक्शन विदाउट एनी एरर 0 ट्रांसमिट होता है, 0 रिसीव होता है, उसका 0.8 है. तो अगर एरर आता है इसमें और 0 ट्रांसमिट होता है, 1 रिसीव होता है, 0.2. दैट इज 1 माइनस 0.8. इट इज द 1 माइनस 0.8, so that is 0.2. clear? Understood? Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ पे मैं 0 ट्रांसमिट कर रही हूँ और 0 मिल रहा है, उसका दिया हुआ है डेटा. तो 0 ट्रांसमिट कर रहे हो और 1 मिल रहा है, दैट मीन वहीं पे कुछ एरर आई. तो ये दोनों का एरर, ट्रांसमिट तो 0 ही हो रहा है, तो दोनों का एडिशन मतलब प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 होना चाहिए. तो मैं 1 माइनस ये डेटा करूंगी तो मुझे ये डेटा मिल जाना चाहिए. ओके, नाउ सिमिलर राइट डाउन द डेटा फॉर द P of R0 by T1. We can write down the data for P of R0 by T1. Here you can see here this data, 0.95 is given. When the 1 is transmitted, 1 is received. Okay, so transmit the 1, yes, 1 transmit the 1 ही हो रहा है, but due to the some error I received the 0. Okay, so 1 minus 0.95, so I get the 0.05. so this data is write down here 0.05. तो ये दो डेटा आपको दिया नहीं रहता है, बट यू कैन राइट डाउन फ्रॉम द गिवन डेटा डायरेक्टली. ओके, तो हमेशा इतना चीज पहले लिख दिया करो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, उसके बाद सिंपल है. तो ये सारा डेटा अपने पास आ गया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? 1 इज रिसीव. सेम 1 रिसीव, दैट मीन P of R1 वी हैव टू फाइंड आउट. तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है. 1 कब कब रिसीव हो सकता है? या तो 0 ट्रांसमिट हुआ या तो 1 ट्रांसमिट हुआ. देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. सो in form of the condition we can write down P of R1 when the 1 is transmitted. This is the one when the 1 is transmitted, but at that time we have to do the multiplication with the P of T1, क्योंकि मुझे T1 1 ट्रांसमिट होने का भी तो कंसिडर करना पड़ेगा ना प्रोबेबिलिटी, राइट? Addition with P of 1 was received at that time, 0 was transmitted. 1 is received at the time, 0 was transmitted into P of T0. ये हो जाएगा आपको P of R1, 1 is received का आंसर. Hello, ma'am. Is first answer 0.6125? 0.6. 6125. Yeah, 49 by correct. 80. Yes, correct. Second Wait, 0.8531. Rumil, wait. बाकी लोग को करने दो. Wait. Okay, ma'am. Roll number 34, division A. Soni Shivam, are you there? Roll number 30, division A. सबका एब्सेंट लग रहा है, जो लोग मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं. $29. Yes, ma'am. Yeah, what is the answer of the first question? Ma'am, total answer Yeah, P of R1. 0.6125. Yeah, it's correct.
So just you have substituted this all values in the equation P of R1. You will get the answer is 0.6125. I think सबका हो गया होगा. Okay. Now write down the question number 2. क्या था? Question 2. 1 was transmitted given that 1 was received. तो पहले तो क्या find करना है? R1 by T1 या T1 by R1? Roll number 43. R1 upon T1. 43. Yes, ma'am. Yadav Vishal. Yeah. What we have to find out in the question 2 in form of the R and T? एक मिनट मैम मैं देखता हूँ. Yeah. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको रिप्रेजेंट करेंगे तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल्स. फोर्टी थ्री समझ में आया क्या? कहाँ चला गया? गायब हो गया, निकल गया क्या? नहीं है यहाँ पे. ओके या बोलो चलो. मैम क्वेश्चन एक मिनट फिर से देखना है मेरे को. तूने लिखा नहीं क्या? वो कल चले गया था, मेरा नेटवर्क इशू है यहाँ पे, थोड़ा बारिश हो रही है. स्क्रीनशॉट लिया करो फिर. ओके मैम. या दिस इज अ क्वेश्चन. नाउ टेल मी. यहाँ से देख के बताओ डायरेक्टली. 1 was transmitted given that 1 was received. तो मुझे P ऑफ के फॉर्म में बताओ क्या फाइंड करना है आपको. T by R by T क्या आएगा बताओ चलो. ध्यान कहाँ था आपका? रोल नंबर 8 डिवीजन बी तुषार. नाइन. यश डिवीजन बी 9. Okay, absent. 16. Seventeen. No one is there. 17, 18. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, fine. Yes, ma'am. 20, 21. Any students of? Ma'am. Okay. Yeah. C by R. T by R. Okay. T1 या T0 क्या आएगा प्रॉपर बताओ अभी. T by R is correct. T1 ma'am. Okay. T1 by R1. yeah. T1 by R1. Fine. So here we can apply the Bayes theorem. So we can write down similar like as the previous example. R1 by T1 into P of T1 divide by same P of R1 by T1 into P of T1 और second possibility है P of R1 by T0 into P of T0. तो ये हो गया आपका P of R1 डिनोमिनेटर पोर्शन. ठीक है, जो हमने पहले फाइंड करके रखा हुआ है. दिस इज योर P of R1. कौन है अभी ज्वाइंट हो रहा है? 24 डिवीजन बी 24 डिवीजन बी 24 अभी क्यों ज्वाइंट हुआ? मैम थोड़ा लेट हो गया. तो ये थोड़ा लेट है क्या? नहीं मैम.
टाइम पे आया करो लेक्चर में, या तो फिर ज्वाइंट मत हो। इतना सेंस होना चाहिए कि इट्स ऑलरेडी 10-15 मिनट्स गॉन, देन आई शुड नॉट ज्वाइन। आप तो 10 o'clock भी ज्वाइन कर रहे हो। सॉरी मैम। या सो P of R1 का वैल्यू आपके पास है, R1 T1 है, P of T1 है, तो you will got the value answer of this one. Okay, क्या मिला? Did you get it? 0.8531. Yeah, it's 0.8531. फाइन, ये सिंपल है, सब वैल्यूज दिया हुआ है, सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूट करना है। दिस आंसर इज 0.853। नाउ थर्ड वन, आपको एरर फाइंड करनी है। अभी बताओ एरर किसको बोलेंगे, क्या फाइंड करेंगे हम एरर में? When one is received but 0 is transmitted and vice versa. Yeah. So when I'm transmitting 0 but I receive the 1, when I'm transmitting 1 but I receive the 0, it's called the error. So we have to find out this error in the third answer. So right now here P of error. Is that 0.25 No. error? 0.1175. Yeah, it's 0.1175. So for the P of E that means indicate the error. So how we can find out the answer? First, 1 was received when the 0 was transmitted. So 1 आपका received हुआ है, 0 ट्रांसमिट किया था, तो R1 by T0 और एट दैट टाइम T0 लिखना पड़ेगा, ठीक है, प्लस क्या आएगा आपका, 0 रिसीव्ड हुआ व्हेन 1 ट्रांसमिट हुआ, तो P of T1। ठीक है, अभी ये दो वैल्यूज एक्चुअली क्वेश्चन में नहीं दिया था, बट हम लोगों ने फाइंड करके रखा हुआ था, ठीक है, 1 माइनस करके, तो ये दोनों वैल्यूज हमको मिल गया है, और P of T0 एंड T1 इज ऑलरेडी गिवन, तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? सो विल गेट द आंसर इज 0.1175। समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अगर इसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो आपको आना चाहिए, जैसे 1 वाज रिसीव्ड था उसकी जगह पे अगर 0 वाज रिसीव्ड बोला है तो यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली दैट। सेकंड क्वेश्चन में भी 1 वाज ट्रांसमिटेड एंड 1 वाज रिसीव्ड, इंस्टेड ऑफ दैट 0 वाज ट्रांसमिटेड एंड 0 वाज रिसीव्ड, तो आपको P of T0 by R0 फाइंड करना है इंस्टेड ऑफ द P of T1 by R1। ठीक है, तो पहले हमने P of R1 फाइंड किया था, अगर इसकी जगह पे P of R1 की जगह पे P of R0 बोला है तो अकॉर्डिंगली दैट यू हैव टू चेंज, उसमें और कुछ चेंजेस नहीं हो सकता। और एक एरर का था, वो भी मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में बता दिया, हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरर। इज इट क्लियर everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Now write down the next example. इसमें बाकी था, ये second one is remaining. In a factory, bolt factory, machines A, B, C manufacture 25, 35 and 40% of the total bolts respectively. Of their outputs, 5, 4 and 2% respectively are defective bolts. A bolt is drawn at random and found to be defective. What is the probability that bolt came from machine A, B and C? मैंने यहाँ पे तीनों मशीन से बोला है, समटाइम्स क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन भी 2015 या 14 में कुछ, एक ही मशीन बोला है, ए या बी या सी। ओके, मैंने तीन इसीलिए बोला है कि हमारा एक ही क्वेश्चन में आंसर हो जाना चाहिए तीनों का, वो अलग अलग पूछ सकते हैं और ये लंबा हो जाएगा अभी तीनों लिया है तो, बट मोस्टली दे विल आस्क इन ओनली वन। ओके, सो राइट डाउन द डेटा फर्स्ट। मशीन ए बी सी, सॉरी हाँ, ए बी सी इज गिवन, तो मैं वो इवेंट कंसीडर कर रही हूँ, सपोज E1, E2 एंड E3।
Okay, so I am taking suppose event E1, that means A machine manufacturing, उसका कितना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है 25%, so it's 0.25 या तो आप 25/100 डेटा ऐसे ही लिखो 25/100, so वो इजी जाएगा कैलकुलेशन में, मैन्युअली करना है तो. एंड सेकंड टेक अ इवेंट E2, देन मशीन B मैन्युफैक्चरिंग लिखो 35%, और event E3, that for the machine number C, which one is produce the bolts 40%, so 40/100. Okay, so E1, E2 and E3 आपको मिल गया 25/100, 35/100 and 40/100. Now what data is given? Defective bolts data is given, which one is manufactured by the machine A, B and C. Okay, तो अगर मैं डिफेक्टिव आइटम है और हाँ बोल्ट इज ड्रॉन एट द रैंडम एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, तो मैं एक इवेंट कंसिडर करती हूँ. इवेंट का नाम कुछ भी ले लो, सपोज आई एम टेकिंग द इवेंट एक्स. इवेंट एक्स क्या कंसिडर कर रही हूँ? ड्रॉइंग डिफेक्टिव बोल्ट्स. ओके, तो अभी यहाँ पे जो परसेंटेज दिया है 5, 4 एंड 2, वो पर्टिकुलर मशीन का दिया है. वो किसका दिया है? मशीन वो डिफेक्टिव बोल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं. तो आई हैव टू डेटा लिख लिया आपने, तो मैं मतलब चेंज करूं, आपको समझ में नहीं आएगा अदरवाइज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट. यस मैम. ओके फाइन. तो फर्स्ट तो डेटा रिप्रेजेंट कैसे करना है समझ गए आपको. मैंने E1, E2 कंसीडर किया और E3. E1, E2 और E3, दैट इज मेरा मैन्युफैक्चरिंग रेट जो दिया है वो, तो ये दिया है आपको 25/100, 35 दिस वन इज 35/100 और दिस वन इज 40/100. फाइन. नाउ आपको जो रैंडमली पिकअप कर रहे हो, तो आपका डिफेक्टिव बोल्ट है, वो तो हमको एक इवेंट लेना पड़ेगा. सपोज आई एम कंसिडरिंग द इवेंट एक्स, क्या है? टू ड्रॉइंग अ डिफेक्टिव आइटम्स या बोल्ट्स जो भी है. तो डिफेक्टिव आइटम के लिए मैंने ये इवेंट कंसिडर किया एक्स. ओके, नाउ सेकंड डेटा जो लिया है सेकंड लाइन में, उसमें क्या दिया है कि वो डिफेक्टिव बोल्ट्स प्रोड्यूस होने की जो उसकी मशीन ए बी सी है, वो उसका कितना परसेंटेज है, राइट. तो अगर यहाँ पे मैं कंसीडर उसको रिप्रेजेंट करूंगी, तो कैसे रिप्रेजेंट होगा? x/E1, वो मशीन नंबर ए, E1 मतलब मशीन नंबर ए, वो फिक्स है कि मशीन ए, बट क्या इसमें डिफेक्टिव बोल्ट्स कितने आ रहा है, उसका डेटा आपको दिया है 5%, दैट इज 5/100. समझ में आया? x/E1 कैसे लिखा मैंने? मशीन ए विच वन इज द प्रोड्यूस द डिफेक्टिव बोल्ट्स, तो x/E1 that is 5%. Similar, we can write down the data for the second machine, that is P of x/E2. उसका परसेंटेज दिया है 4%, 4/100. और लास्ट डेटा that is P of x/E3, it is also given 2/100. ये समझ में आया? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Now what we have to find out first, the question, in the question it is given a bolt is drawn randomly, okay, and found to be defective. Okay, what is the probability that bolt came from the machine A? पहले हम लोग अभी सिर्फ मशीन A कंसीडर करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे डायरेक्टली बेस अभी है ना, एक चीज याद रखो कि जब भी बेस थ्योरम कब अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, मोस्ट ऑफ एग्जांपल में हो सकता है. यहाँ पे क्या दिखा है? व्हाट इज द सॉरी, अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट केम फ्रॉम द मशीन ए. सो फॉर दैट हाउ वी कैन अप्लाई द बेस थ्योरम? आपको जिसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है,
मुझे क्या फाइंड करना है, मशीन ए में से निकला तो दैट मीन पी ऑफ ए, ओके। और इसमें कंडीशन क्या दिया है कि वो बोल्ट मैं रैंडमली पिकअप कर रही हूँ, इट शुड वो डिफेक्टिव निकल रहा है, तो डिफेक्टिव का इवेंट हमने कंसीडर किया है ई, बट ये मशीन ए के लिए है तो वी हैव टू फाइंड आउट द, वी हैव टू राइट डाउन हियर E1, अंडरस्टूड। सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या, या सॉरी, इसको कैंसिल करते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट केम फ्रॉम मशीन ए, ओके। मशीन ए के लिए हमने E1 कर लिया है ना, हमने ए लिया ही नहीं है, मशीन ए के लिए क्या कंसीडर किया है E1, सो आई हैव टू फाइंड आउट द E1, बट उसमें क्या बोला है कि वो डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव के लिए क्या कंसीडर किया है X, मैंने रिप्रेजेंटेशन सिर्फ गलत किया था, ओके। सो डिफेक्टिव आइटम इज X और आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी E1, तो E1 बाय X। अभी यहाँ पे जब बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, उसको उल्टा कर देते हैं, X बाय E1 इंटू पी ऑफ E1। और बेस थ्योरम में नीचे क्या लिखते हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो सारी जाती है, अभी ऊपर यहाँ पे E1 आया तो ऐसे सिमिलर अपने पास टोटल 3 है, E1, E2 एंड E3, तो वी हैव टू राइट डाउन ऑल हियर, सो P ऑफ X बाय E1 इंटू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ X बाय E2 इंटू P ऑफ E2 प्लस P ऑफ X बाय E3 into P of E3, यही है ना बेस थ्योरम, समझ में आया इक्वेशन Yes, कैसे ma'am. लिखा, बाकी सबको Yes, ma'am. वो ये आपका मिल जाएगा फॉर द मशीन ए, क्वेश्चन में मशीन ए बी सी मतलब E1, E2, E3 तीनों का अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर सिर्फ आपको एक ही मशीन का बोला है तो हम यहाँ तक करेंगे, अगर सेकंड मशीन बोला है तो सेकंड मशीन के लिए आपका इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका E2 बाय X, यू हैव टू फाइंड आउट द P ऑफ E2 बाय X, तो X बाय E2 इंटू P ऑफ E2 ऊपर आएगा और नीचे का पोर्शन एज इट इज आएगा, क्योंकि नीचे तो हमको सबका एडिशन करना ही है सारी पॉसिबिलिटीज का। सिमिलर फॉर द थर्ड मशीन C, दैट मीन E1, E3, so we have to find out the P of E3 by X, that is equal to P of X by E3 into P of E3 divided by all as it is, addition of the three machines. Ma'am, Yes, hello. yes. Ma'am, E1 upon X मतलब given that it is a defective bolt और वो defective bolt भी A का है, वो ही ना मतलब। हाँ वही जो अभी है ना, इसमें कंफ्यूजन होता है तो क्या करो, देखो मैं बता रही हूँ वापस, आपको क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड क्या करना है वो देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट केम फ्रॉम मशीन ए, मशीन ए के लिए हमने E1 कंसीडर किया है, करेक्ट। वी हैव टू फाइंड आउट समझ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी लिखा है ना, तो किसका फाइंड करना है पहले वो देखो, E1 का फाइंड करना है, दैट मीन मुझे P ऑफ E1 फाइंड करना है, इतना तो पता चलेगा। और ऊपर एक कंडीशन दी है, बोल्ट इज ड्रॉन रैंडम एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, तो स्लैश करके मुझे डिफेक्टिव का वो कंडीशन हो गई मेरी, तो डिफेक्टिव के लिए मैंने X इवेंट लिया है, तो E1 बाय X हो गया वो। क्या आंसर मिला P ऑफ E1 बाय X? 0.3623. नो, 0.3521. मेरा 0.4578 आ रहा है, बाकी लोग देखो, 0.3623. ओके सबका वही आया है। Yes, ma'am, मुझे भी वही मिला. पहले वैल्यूज रखा हमने यहाँ पे, इट इज P ऑफ E1 दैट इज 25/100, इट इज 1/4, ओके।
then x by e1 is 5 by 100. Okay, okay, values the size 0.0125 डिवाइड बाय 0.0273 ऐसा आ रहा है। मेरा कुछ अलग आ रहा है तो फिर माय आंसर इज 0.4578। ठीक है, चलेगा। 0.36 मिला ना आपको? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, सबका यही आ रहा है तो फिर वही होगा, मेरा कुछ मिस्टेक हुआ होगा। फाइन। Similarly, you have to find out the p of e2 by a, e2 by x and e2 by e3 by x. Okay, तो मैं आंसर लिख लो, आप वेरीफाई कर लेना। हम लोग एक क्वेश्चन बाकी वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसका आंसर बहुत छोटा आ रहा है। क्या क्या बोला लास्ट में? किसी ने कुछ बोला, समझ में नहीं आया। सेकेंड आंसर बहुत स्मॉल आ रहा है वैल्यू। मेरा आ रहा है -4। -4 नहीं आएगा, इतना कम नहीं आएगा, कुछ मिस्टेक किया होगा। 0.5058 4058। ओके, तेरा Yeah, miss. 4058। 0.4058. ओके, इट इज 0.4058 then। एंड थर्ड वन क्या आ रहा है? ये सेकंड का है और थर्ड का क्या आ रहा है? p of e3 by x 0.2319। 0.2319। 0.2319। एक मैम बार चेक कर लो आंसर। 3943 आया। सेकंड का आया 3943। अलग अलग क्यों आ रहा है सबका? मेरा भी अलग है, इसलिए मैं भी कुछ बोल नहीं सकती, मेरा तीनों आंसर अलग है। कुछ कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन, इसमें मिस्टेक मोस्टली, मतलब देख लो एक बार। फॉर्मूलाज ऐसी है, वैल्यूज अपने को पता है क्या क्या रखना है। ठीक है, मैं मेरा आंसर एक बार वेरीफाई करके आपको फाइनल आंसर बता दूंगी। बट आपको प्रोसेस पता चल गया, इक्वेशंस कैसे बनाना है वो पता चला, वो इम्पोर्टेंट है। फाइन, ये तीनों आंसर फाइंड करके रखना। वी विल वेरीफाई इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, write down the next question. Last one is remaining, then first this module is over. Next lecture में second module start करेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, ये हो गया। This one is remaining, last one. और स्क्रीनशॉट ले लो, अभी क्वेश्चन लिखने मत बैठो, टाइम नहीं है इतना, दूसरा लेक्चर होगा आपका। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन अ सर्टेन कॉलेज क्या है, 25% ऑफ द बॉयज एंड 10% ऑफ गर्ल्स आर स्टडिंग मैथ्स। ओके, द गर्ल्स constitute 60% of the student body. Fine. What is the, okay, what data are given? First, total number of the girls in the school, it is 60%. Okay, so definitely we can find out the boys, it is 40%. तो आपको फर्स्ट डेटा लिख दो कि P of G, गर्ल्स मैंने G लिया है, P of G that is 60 by 100. सेकंड डेटा P of B that is 40 by 100. तो 2 डेटा मिल गया। Now another data is given in the certain college, 25% of boys and 10% of girls are studying maths. तो यहाँ पे ये क्या डेटा क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में, जरा बताओ। Probability of B upon T. So boys total is 0.25 and girl total is 0.1. B by क्या बोला? B upon Okay, T BM. total. B upon M आएगा? upon T. No ma'am, it is like B M upon total and girl M upon total. नहीं, इसमें कंडीशन नहीं, इसमें एक कंडीशन दी हुई है ना। कंडीशन है इसके वो बॉयज है, और जो देखो क्वेश्चन पढ़ो आप,
अपने मतलब इन सेटिंग कॉलेज 25% ऑफ बॉयज ओके एंड 10% ऑफ गर्ल्स आर स्टडिंग मैथ्स. वो सब लोग मैथ्स so पढ़ रहे हैं, इसमें BM 25% upon B. बॉयज है. BM upon B. या सो हम लोग मैथ्स को सिर्फ m लेते हैं, ठीक है. तो m बाय b कंसीडर कर सकते हैं. बॉयज को मैं b ले रही हूँ, गर्ल्स को मैं g ले रही हूँ, मैथ्स को m ले रहे हैं. नोटिफिकेशन Yes, क्लियर? Yes, या ma'am. so we can write down it is the p of m by b. ओके, मैथ्स इज द कॉमन, मैथ्स इस दोनों के लिए कॉमन है, बट तो इसके लिए कंडीशन क्या बनेगा कि 10% बॉयज और 10% गर्ल्स है. तो स्लैश में आपका बॉयज एंड गर्ल्स अलग अलग है. मैथ्स, so we can write down this data like that. It is p of m by b. So it is 25% था ना, 25 by 100. और second data which is given that is for girls, तो मैथ्स स्टडी कर रही है. गर्ल्स कितना था? 10%. ओके, 10 by 100. नाउ यहाँ पे और एक डेटा दिया था, दैट इज जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि गर्ल्स कितनी है टोटल कॉलेज में या स्कूल में जो भी है. गर्ल्स आर 60%. Girls are 60%, so yeah, we can write down 60 by 100 here. और बॉयज दिया नहीं है, बट वी कैन राइट डाउन बॉयज. 60 गर्ल्स है तो डेफिनेटली 40% बॉयज है. फाइन, इतना डेटा दिया हुआ है हमको. नाउ व्हाट अनदर डेटा, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मैथमेटिक्स इज बीइंग स्टडीड. दैट मीन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, p of m. हमको p of m फाइंड करना पड़ेगा ना मैथमेटिक्स. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी मैथ्स पढ़ने वाले बॉयज हो सकते हैं या तो गर्ल्स हो सकती है. तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे बताओ, इक्वेशन क्या बनेगा? P of m by b p of m by b into into p of b yes, plus p of m by g into p of g. yeah, correct. Plus p of m by g into p of g. These all data are given. So find out the answer. जल्दी करना, जो भी आंसर मिला लिख लेना यहाँ पे. नेक्स्ट वन, टाइम नहीं है, पर नेक्स्ट लेक्चर है इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड करती हूँ. नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वेश्चन, इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम and it's found to be studying maths, okay, find the probability that student is girl. लास्ट में क्या बोला है? find the probability that student is girl. that means p of g find करना है. और उसमें क्या बोला है? select a random, it's found to be studying maths. that means by m, g by m you have to find out. Clear? It's given the find the probability that the student is girl. that means we have to find out p of g, but condition is given कि वो maths पढ़ रहे हैं. So we have to find out the p of g by m. So same base theorem apply कर लो. p of g by m, we can write down m by g into p of g divide by total g boys and girls दोनों आ जाएगा नीचे. p of m by g into p of g plus p of m by b into p of b, जो ऑलरेडी ऊपर हमने फाइंड करके रखा हुआ है. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. अभी बेस थ्योरम इजी लग रहा है? समझ में आ रहा है कैसे अप्लाई होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. ओके, फाइन डन. क्योंकि मोस्ट ऑफ ऐसे क्वेश्चन से आते हैं, सिंपल वाले बहुत ही कम आएगा. तो आगे भी अभी हमने अभी एक लोग आप ट्राई करना कि आगे जितने एग्जांपल्स किए हैं ना, वो सब में बेस थ्योरम अप्लाई करना. और कैसे अप्लाई होता है आपको समझ में आएगा, वो इजी होगा. वो लेंथी, वो पहले हम लोग लेंथी मेथड करते थे, वो इसमें डायरेक्टली एक इक्वेशन में आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है. Today I will upload assignment number 1 in the classroom. Okay, in afternoon maybe I will get the time, then we'll upload it.
So 1 week का time मिलेगा. Next, आज today is Monday ना. So next Monday it is the deadline for the submission of the assignment number 1. You have to submit on and before that. Otherwise, I will not consider assignment marks for the first assignment. Okay. So I will upload by today. I think मैंने 6 या 7 questions डाले हुए. मैं instruction जो भी है, right? I will return in classroom only with the assignment. Okay. Whatever the instructions are there. Mostly सारे question जो भी होगा वो सब आपको solve नहीं करना है. मैं odd even numbers रखूंगी. जिसका रोल नंबर ऑड होगा वो ऑड क्वेश्चन सॉल्व करेगा, जिसका इवन है वो इवन सॉल्व करेंगे. So for every assignments I will change these instructions. Not every time odd even आएगा. ठीक है. तो वो instruction I will, yeah, whatever the instructions will be there, I will return in the classroom with the assignments. But deadline for the assignment of submission for the first assignment submission is next Monday. On before that you have to submit. Okay. Okay, students, you can leave. Thank you. हेलो मैम. Yeah. मैम आपने वो ट्यूटोरियल चेक किया? मैंने गलती से क्लासरूम में डाल दिया था डायरेक्ट. नहीं, क्लासरूम में मुझे नहीं मिला कुछ, क्योंकि क्लासरूम में आप लोग अपलोड ही नहीं कर सकते कुछ. मैंने कमेंट भी किया था मैम, उसमें कर सकते फाइल डायरेक्ट अपलोड करके कर सकते हैं, या तो फिर मैं वापस गूगल फॉर्म पे अपलोड कर दूं, चलेगा? आप अभी ऑनलाइन रहो, मैं आपके सामने वापस चेक करूँ यहाँ पे. बाकी लोग लीव हो सकते हैं. ठीक है. जस्ट बी ऑनलाइन. स्क्रीन दिख रहा है ना आपको मेरा? यस मैम. जस्ट वेट. यहाँ पे मतलब मैंने वही स्ट्रीम में चेक किया, स्ट्रीम में मुझे कुछ मिला नहीं, तो आपने कहाँ अपलोड किया फिर? मैम मैंने कमेंट भी किया था नीचे. मुझे सिर्फ इतना ही डेटा यहाँ पे आता, बाकी अदरवाइज जो आप अपलोड करते हैं ना, तो इट विल ओपन इन द माय ड्राइव आल्सो. एक्सेल शीट में पूरा मुझे नंबर के साथ आता है, बट आप जो डायरेक्टली बोल रहे हो मुझे मिला नहीं कुछ. मेरा एक्सेल शीट में नहीं आया होगा. 24. आपका नंबर क्या? 24. या 24 का है. यस, जस्ट वेट. आई सबमिट. हाँ, ये ऊपर है. ये वाला. हाँ मैम, सबमिट हो गया. थैंक यू. ओके, फाइन. ओके, फाइन.